How are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study Indian festivals, dance and music. Points to study: festivals, different festivals of India, dance and music. Ready, steady, start. Name 3 festivals you like to celebrate. Also, name the special dishes made on these occasions. ये आप खुद से करेंगे. Festivals. Festivals are occasions of religious or other celebrations. India is a land of varied cultures and traditions. People of many religions live in India. They all celebrate their festivals with traditional religious fervor. These festivals make India a land of festivals. These festivals bring people of different religions closer to each other. During festivals, we wear new clothes and prepare many dishes. Okay, देखिए इंडिया में जो फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं वो रिलीजन्स पर डिपेंड करते हैं. जब डिफरेंट रिलीजन्स इंडिया में हैं तो डाइवर्सिटी भी इसमें आपके फेस्टिवल्स में देखी जा सकती है. ओके, फेस्टिवल्स आपको एक साथ लेके आते हैं, आपकी बॉन्ड बनाते हैं, आप खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं फेस्टिवल्स के टाइम पे. ओके, तो ये आपका ट्रेडिशन क्या है, एक तरीके से फेस्टिवल्स आपका शो करते हैं. ओके, डिफरेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया. देयर आर 3 काइंड ऑफ फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया. दीज आर नेशनल फेस्टिवल्स, religious festivals and harvest festivals. Let's read about each of them. Okay, इंडिया में डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं. फेस्टिवल्स 3 टाइप के होते हैं. पहला है रिलीजियस, दूसरा है नेशनल और तीसरा है आपका हार्वेस्ट. ये आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में भी कि 3 टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं. ठीक है, पहला है नेशनल फेस्टिवल. फेस्टिवल्स विच आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द पीपल थ्रू आउट द कंट्री आर कॉल्ड नेशनल फेस्टिवल. नेशनल फेस्टिवल वो होता है जो सब लोग पूरी कंट्री के मनाते हैं. ठीक है, आगे देखिए. We celebrate national festivals to remember the special days of the past. In India, there are 3 national festivals. They are Gandhi Jayanti, Independence Day and Republic Day. हम national festivals पास्ट को सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं. ठीक है, इंडिया में 3 नेशनल फेस्टिवल्स है. पहला है गांधी जयंती, दूसरा है इंडिपेंडेंस डे और तीसरा है रिपब्लिक डे. गांधी जयंती. We celebrate Gandhi Jayanti on 2nd October every year. On this day in 1869, Mahatma Gandhi was born. Mahatma Gandhi led our country, India, to her freedom from the British rule. He believed in truth and non-violence. The main function of Gandhi Jayanti is held at Rajghat in New Delhi. It is the Samadhi of Gandhi Ji. In the middle of the white band, there is a chakra in navy blue color. It has 24 spokes. The chakra symbolizes dharma. It has been taken from the Ashokan pillar of lion capital. Okay, देखिए जो white band है उसके बीच में आपको एक चक्र दिखेगा. वो 24 spokes उसके अंदर होते हैं और वो नेवी ब्लू कलर का होता है. ये जो चक्र है ये लिया गया है अशोकन पिलर से. ओके, now, the 3 colors of the national flag symbolizes the 3 different things. The saffron color stands for sacrifice, the white color stands for truth and peace, and the green color stands for prosperity. The chakra represents constant growth. Okay, देखिए जो 3 colors हैं हमारे फ्लैग में वो तीनों कलर्स कुछ ना कुछ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. We must stand at attention whenever the anthem is being played. अगर कभी भी आपको नेशनल एंथम सुनाई दे रही है और कहीं पे चल रही है तो आपको हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए. और जब आप सुने तो सीधे स्ट्रेट जैसे आप खड़े होते हैं नेशनल एंथम में वैसे ही आपको खड़े हो जाना चाहिए. ओके, नेशनल एम्बलम. ओके, देखिए नेशनल एम्बलम कैसा दिखता है, साइड में है. ओके, पिक्चर में. Our national emblem has been taken from the Ashokan pillar at Sarnath. It has 4 lions back to back, but only 3 lions are visible. Below the lions is a wheel with the horse and a bull on either sides. The words Satyamev Jayate are written on the bottom. It means truth alone triumphs. Okay, देखिए नेशनल एम्बलम जो है इसके टॉप पे आपको 4 लायंस दिखेंगे लेकिन विजिबल सिर्फ 3 होते हैं, बैक टू बैक 4 होते हैं. उसके नीचे एक व्हील होता है. ओके, और बीच
The main functions of the Republic Day is held as Rajpath in New Delhi. Okay, देखिए Republic Day 26th of January को हर साल मनाया जाता है। इस दिन हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन मिला था। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक तरीके से बुक होती है जिसमें रूल्स लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो इस दिन हमारी जो कंट्री है वो रिपब्लिक हुई थी और इससे सेलिब्रेट किया जाता है राजपथ पे न्यू दिल्ली में। A grand parade is held as Rajpath. India Armed Forces, school students and folk dancers from all over India take part in the parade. Okay, यहाँ पे राजपथ पे परेड होती है और यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस, स्कूल चिल्ड्रन और फोक डांसर्स आके पार्टिसिपेट करते हैं परेड में। ओके, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टेक्स द सैल्यूट ऑफ द परेड। Table oaks from the different states are a big attraction of the parade. Often, the head of the state of a foreign nation is the chief guest of the celebrations. Okay, देखिए प्रेसिडेंट जो है इंडिया के वो परेड को सल्यूट करते हैं और टेबल ऑक्स डिफरेंट स्टेट्स के आते हैं जो कि बहुत बड़ी अट्रैक्शन होते हैं इस परेड के। जो इनके चीफ गेस्ट होते हैं वो फॉरेन नेशन से आते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल्स, people of different religions live in India. They all celebrate festivals as per their religions. These festivals reflect the cultures and customs of different religions. Following are some important religious festivals of India. Let's read about them. Okay, देखिए रिलीजन्स के अकॉर्डिंगली इंडिया में रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आपका कल्चर के अकॉर्डिंगली होते हैं, ट्रेडिशन के अकॉर्डिंगली होती है। तो चलिए आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है दशहरा। दशहरा इज अ रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ द हिंदूज. इट इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड रामा ओवर रावणा, हु वॉज द डिमोन किंग ऑफ लंका. लॉर्ड रामा किल्ड रावणा ऑन विजयादशमी. It symbolizes the victory of good over evil. Okay, देखिए दशहरा हिंदूज का रिलीजियस फेस्टिवल है। इस दिन राम जी ने रावण का वध किया था। उस दिन विजयादशमी थी। तो दशहरा हमें गुड की जीत दिखाता है ईविल पे। ओके, अच्छाई की जीत बुराई पे। Dashera is celebrated for 10 days. Ram Leela is held every night for 9 days. In Ram Leela, the story of Rama is enacted. On the 10th day, the effigies of Ravana, his brother Kumbhakarna and his son Meghnad are burnt. In West Bengal, these 10 days are celebrated as Durga Puja. People make idols of 10 armed goddesses Durga and worship for 9 days. On the 10th day, they immerse the idols of rivers. देखिए दशहरा जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 डेज के लिए, जिसमें 9 दिनों तक रामलीला परफॉर्म की जाती है। ठीक है, रामलीला परफॉर्म की जाती है 9 डेज तक और 10th डे पे जो पुतले हैं रावण, उनका भाई और उनके बेटे के 3 पुतले एक साथ जलाए जाते हैं। वहीं वेस्ट बंगाल में यहाँ पे गॉडेसेस की पूजा की जाती है, दुर्गा पूजा की जाती है। 10 डेज तक लगातार गॉडेसेस की पूजा होती है। ओके, और 10वें दिन पे जाके जो मूर्तियां होती हैं गॉडेसेस की, उन्हें रिवर्स में जाके बहा दिया जाता है। ओके, दिवाली। Diwali is an important Hindu festival. It is celebrated to mark the return of Lord Rama to Ayodhya. Lord Rama returned to Ayodhya after 14 years of exile. On Diwali, people decorate their houses and shops. They light candles, diyas and electric bulbs. At night, people worship goddesses Lakshmi and Lord Ganesha. They exchange gifts as दिवाली ग्रीटिंग्स। ओके, देखिए दिवाली हिंदूज का मेन फेस्टिवल है। दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि राम जी जो थे 14 साल का वनवास काट के आए थे। 14 इयर्स के बाद वो अयोध्या लौट कर आए थे, तो इस ओकेजन पे दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है। दिवाली वाले दिन लोग लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा करते हैं। ओके, लोग एक दूसरे से स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं, न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, अपने घर को क्लीन करते हैं और डेकोरेट करते हैं। ओके,
Children burst crackers and fireworks. We should not burst crackers and fireworks as they pollute the air. We must celebrate the Diwali as the festival of lights only. Okay, देखिए बच्चे जो हैं क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं, फायरवर्क्स चलाते हैं. आपको क्रैकर्स और फायरवर्क्स नहीं चलाने चाहिए क्योंकि इससे पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता है और हमारी एयर को पॉल्यूट करता है. ओके, यू मस्ट नो in the Hindu mythology, goddess Lakshmi is regarded as the goddess of wealth. हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को वेल्थ का गॉडेस माना जाता है, मतलब के पैसों की गॉडेस माना जाता है, मनी का गॉडेस माना जाता है. ओके, गुरु परब is the festival of Sikh. It is celebrated to mark the birth of the Sikh Gurus. The birthdays of Sikh Guru Gobind Singh and Guru Tegh Bahadur are celebrated all over India. Okay, गुरु परब जो है वो फेस्टिवल है सिख का. इस दिन 10 सिख जो थे उनका जन्म हुआ था, तो ये पंजाब जो है वहाँ पे मेनली सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, नाउ ऑन दिस डे द सिख गो टू द गुरुद्वारास to show respect to the Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikh. Big processions are taken out to mark this occasion. Gurudwaras are decorated with lights. There is a big arrangement of langar in the Gurudwaras. Okay, देखिए जो सिख होते हैं इस दिन गुरुद्वारा जाते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब जो कि इनकी होली बुक होती है उनकी पूजा करते हैं, गुरुद्वारे को डेकोरेट करते हैं लाइट से और बिग लंगर्स लगाए जाते हैं सबको खिलाने के लिए. ओके, Christmas is the most important festival of the Christians. It is celebrated on 25th December every year. It is celebrated to mark the birthday of Jesus Christ. People decorate their houses with small Christmas trees. They gather around these trees and sing carols. They also go to the churches to offer prayers. Okay, देखिए क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है. ये हर साल 25 ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है. इस दिन जीसस क्राइस्ट जो थे उनका बर्थ हुआ था. ओके, लोग चर्च जाते हैं, प्रेयर्स ऑफर करते हैं. ओके, क्रिसमस ट्री से घरों को डेकोरेट करते हैं. ओके, children love Christmas as they believe that Santa Claus come on the eve of the Christmas and bring gifts for them. Christmas चिल्ड्रंस का फेवरेट फेस्टिवल होता है. क्यों? क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इस दिन सांता क्लॉज जो हैं वो आएंगे और उनके लिए गिफ्ट्स लेके आएंगे. ईद उल फितर, it is the main festival celebrated by the Muslims. It comes at the end of the holy month of Ramadan. The Muslims keep fast during the month of Ramadan. On Eid, everyone wears new clothes and goes to the mosque to offer namaz. They greet each other by saying Eid Mubarak. Okay, देखिए ईद जो है, ईद उल फितर जो है वो मुस्लिम्स का मेन फेस्टिवल है. इस दिन लोग न्यू कपड़े पहनते हैं, घरों की साफ सफाई करते हैं, नमाज पढ़ने मोस्क मतलब कि मस्जिद जाते हैं, एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और कहते हैं ईद मुबारक. सेवैयाँ is a special dish of Eid. Elders give money to the children called Eidi. Beside these festivals, Ganesh Chaturthi, Buddha Jayanti and Mahavir Jayanti are also celebrated in India. Okay, देखिए ईद का जो सबसे फेमस डिश है वो है सेवई. ओके, इस दिन सेवई हर घर में बनती है और जो बड़े हैं वो बच्चों को पैसे भी देते हैं जिसे ईदी बोला जाता है. इन सारे फेस्टिवल्स के अलावा भी कुछ फेस्टिवल्स हैं जो कि ऑल ओवर इंडिया मनाए जाते हैं, जैसे कि गणेश चतुर्थी, बुद्ध जयंती या फिर महावीर जयंती. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, some festivals are celebrated at the end of a crop season. Harvest festivals also mark a change in season. These festivals are called harvest festivals. Okay, कुछ फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं जब क्रॉप्स जो हैं आपके, मतलब कि जो भी आप क्रॉप्स उगा रहे हैं वो राइप हो गए हैं, पक गए हैं और उन्हें काटने का टाइम आ जाता है, तो उस टाइम पर मनाए जाते हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल. ठीक है, यू मस्ट नो द वर्ड हार्वेस्ट मीन्स द गैदरिंग ऑफ राइप क्रॉप्स. जैसे कि मैंने बताया हार्वेस्ट का मतलब होता है जो पके हुए क्रॉप्स हैं उन्हें फील्ड से हटा के एक जगह रखना या काटना. ओके, होली,
Holi is the festival of colors. It marks the end of the winter season. People throw the color water and apply gulal on each other. They sing and dance. होली जो है ये फेस्टिवल होता है कलर्स का, ये विंटर सीजन के एंड पे आता है। इस दिन लोग एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं और कलर वाटर एक दूसरे पर डालते हैं और डांस करते हैं, सिंग करते हैं। पोंगल, Pongal is the harvest festival of Tamil Nadu. It is celebrated in the month of January after the harvesting of rice. It is celebrated for 3 days. The first day is called Bhogi Pongal. It is a family festival. Okay, देखिए पोंगल जो है ये भी एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तमिलनाडु में ये मनाया जाता है। जब राइस जो क्रॉप है उसकी हार्वेस्ट होती है, उसके बाद ये 3 दिनों तक सेलिब्रेट किया जाता है। जो पहला दिन होता है उसे हम भोग पोंगल कहते हैं। ओके, ये एक फैमिली फेस्टिवल होता है। जो द सेकेंड डे इज नोन एज सूर्य पोंगल. इट इज सेलिब्रेटेड बाय द वर्शिपिंग ऑफ सन गॉड. ऑन दिस डे Pongal rice is prepared for newly harvested rice and jaggery. The third day is celebrated as Mittu Pongal. It is celebrated by worshipping the mother cow. Okay, देखिए जो सेकेंड डे है उसे हम सूर्य पोंगल कहते हैं। इस दिन सूर्य गॉड की पूजा की जाती है। और थर्ड डे को हम मित्तु पोंगल कहते हैं। इस दिन वर्शिप की जाती है गौ माता की। ओके, ओनम. Onam is the harvest festival of Kerala. It is celebrated in the month of August and September. People believe that the king Mahabali visited the country. They wear new clothes, sing and dance. Huge processions and with decorated elephants are taken out. Snake boat race is the main attraction of Onam. देखिए ओनम जो है वो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है और ये अगस्त और सितंबर के महीने में मनाया जाता है। लोग ये बोलते हैं कि जो किंग महाबली है वो कंट्री में आए हैं, विजिट दे रहे हैं। तो इस दिन लोग न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, एक दूसरे को स्वीट्स एक्सचेंज करते हैं। देन प्रोसेशंस होती है एलिफेंट्स की जो कि बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होते हैं। स्नेक बोट रेसेस होती हैं और ये सबसे ज़्यादा मेन अट्रैक्शन होता है इस फेस्टिवल का। ओके, बैसाखी. Baisakhi is the harvest festival of Punjab. It is celebrated on 13th April every year. People dance on the beat of dholak. Men perform bhangra and women perform gidda on this occasion. बैसाखी जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होता है पंजाब का। ये 13 अप्रैल हर साल मनाया जाता है और लोग जो है ढोलक पे डांस करते हैं, मेन भांगड़ा पाते हैं और जो विमेन है वो गिद्दा करती हैं। बिहू. Bihu is a harvest festival in Assam. It is celebrated 3 times in a year. Young boys and young girls perform the famous Bihu dance on the occasion. Bihu असम का फेमस फेस्टिवल है और ये साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। यंग बॉयज़ और यंग गर्ल्स जो हैं वो बिहू डांस परफॉर्म करते हैं। ओके, डांस एंड म्यूजिक. Dance and music are an important part of Indian culture. Let's know something about them. डांस और म्यूज़िक जो है ये इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे कल्चर का। आइए उसके बारे में जानते हैं। डांस. इन इंडिया देयर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डांस फॉर ईच रीजन. मेनली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डांसेस. दीज आर क्लासिकल एंड फोक डांसेस. डांसेस फ्रॉम सच एज कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम आर क्लासिकल डांसेस। ओके, देखिए इंडिया में जैसे कि डाइवर्सिटी हर चीज़ में है तो डांस भी डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं। तो जो फोक डांसेस हैं वो हैं आपके कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम एंड भरतनाट्यम. These dances were earlier performed on special occasions at special places, but today they are generally performed on the stage. Folk dances are different from classical dances. These are performed to celebrate the harvest of the beginning of a new season. Bhangra, Gidda, Garba, Dandiya, Ghumar, Lavani, Chhau are some important folk dances. देखिए जो डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं ये स्पेशल ओकेजन्स पर ही परफॉर्म किए जाते थे पहले, जो फोक डांसेस हैं। ओके, नाउ जो क्लासिकल डांसेस हैं वो पहले स्पेशल ओकेजन्स पर परफॉर्म किए जाते थे, लेकिन अब ये डांस परफॉर्मेंसेस के तौर पर परफॉर्म किए जाते हैं नॉर्मली। ओके,
फोक डांसेस जो होते हैं वो क्लासिकल डांसेस से थोड़े अलग होते हैं। फोक डांसेस जो हैं वो न्यू सीजन के स्टार्ट में या फिर आपके जो क्रॉप हार्वेस्ट हुए हैं उसकी खुशी में सेलिब्रेट या फिर डांस किए जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया भांगड़ा, गिद्दा, गरबा, डांडिया, घूमर, लावनी और छाव। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। म्यूजिक। Music has played an important role in the culture of India since the ancient past. Music is also related with religious traditions. Okay, music जो है इसने बहुत ज़्यादा important role play किया है past में हमारे culture में। Okay, music religious tradition से भी relate करता है। There are two different types of classical music in India. These are Hindustani music and Carnatic music. इंडिया में क्लासिकल म्यूजिक जो है वो 2 टाइप का है, पहला है हिंदुस्तानी और दूसरा है कार्नेटिक। शहनाई, फ्लूट, सितार, तबला, ढोलक, संतूर एंड मृदंगम आर सब कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंडियन म्यूजिक। देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं, नीचे आपको फोटो दिख रही होगी, इनमें दिखाई गई हैं, ये सब क्या है, कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं इंडियन म्यूजिक के। ओके, नाउ कीवर्ड्स। Fervor, enthusiasm, tableaus, attractive scenes especially presented on stage without words. Exile, a long stay away from one's country or home. Let's recapitulate. Festivals are occasions of religions of other celebrations. There are 3 kinds of festivals celebrated in India: national festivals, religious festivals and harvest festivals. Gandhi Jayanti, Independence Day and Republic Day are our national festivals. Religious festivals reflect the culture and customs of different religions. Harvest festivals also mark a change in seasons. Dance and music are important part of Indian culture. Music has played an important role in the culture of India since the ancient past. So students, I hope आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।